everyone, welcome to the OJD Computer Classes. Today we are going to talk about very powerful tool of data analytics world, that is Power BI. It has many features and benefits. Why it is on boom? Because of these features and benefits. So first question is, what is Power BI? Power BI is a business analytics tool by Microsoft, जिसको कि Microsoft ने डिजाइन किया हुआ है, and it enables user to visualize and collaboration. And after that, it empowers organization to make informed decision. If you can visualize the data, you can make the decision on that. After that, what is the features? What is the features of Power BI? Its first feature is data visualization. If you have data on your database or CSV and Excel, you can visualize it very easily with the help of drag and drop. And after that, data integrity. If this tool is created by Microsoft, so data integrity is most important thing, क्योंकि अगर आपका डेटा अगर इसके अंदर है तो डेटा very secure. And after that, data modeling. If you have many tables like in SQL, if आपके पास बहुत सारे tables होते हैं तो आप उसको connect कर सकते हैं with the help of foreign keys. So इसके अंदर भी आप connect कर सकते हैं डेटा को with the feature of data modeling and collaboration in Power BI services. I'm not talking about Power BI desktop. In Power BI services, आपने अगर कोई विजुअलाइजेशन बना रखा है, कोई रिपोर्ट बना रखी है, तो यू कैन कोलैबोरेट विद योर टीम मेंबर. एंड आफ्टर दैट AI insight. If you can visualize, you can forecast the data. You can forecast your data. After that, what is the benefits of Power BI? Power BI benefits, it improve decision making. Yes. अगर आपके पास डेटा है, let's suppose I want to clear this with the help of one example. Like if you and your friend stuck in a jungle, और आपके दोस्त के पास अगर मैप है एंड आपके पास मैप नहीं है, अगर तो जिसके पास मैप है वो बहुत जल्दी फटाफट निकल जाएगा जंगल से और आप उसके अंदर फंसे रह जाएंगे. तो सेम विजुअलाइजेशन के साथ भी ऐसा है, अगर आपके पास डेटा का विजुअलाइजेशन है, then you can improve the decision making. That your data is on regression or classification, this type of things. And after that, cost effectiveness. Yes, you can download the easily from Google free Power BI desktop, and you can start the visualization and you can start the modeling. And after that, user friendly. Yes, अगर आपने Excel पे काम कर रखा है या Word पे काम करा हुआ है तो पता ही होगा कि आपको कितना फ्रेंडली होता है कि तुरंत उसके अंदर मेन्यू बार होते हैं, टास्क बार होते हैं, फटाफट आप देख के सारा काम कर सकते हैं. लाइक दिस Power BI is also user friendly and integration with Microsoft ecosystem. Yes, integrity, जैसा कि पहले भी बताया कि इंटीग्रिटी इज फर्स्ट प्रायोरिटी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से. अगर आपका डेटा माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे है या माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पे है तो आपको डेटा आपका सेफ है. एंड आफ्टर दैट, कम्युनिटी सपोर्ट. यस, पावर BI कुछ सालों से काफ़ी लार्ज कम्युनिटी में यूज़ करी जाती है. अगर आपको कोई इशू आता है, लेट्स सपोज, देन यू कैन फ्रीक्वेंटली आस्क on Google or online like GitHub or like Stack Overflow. You can ask your queries and बहुत सारे कम्युनिटी के जो लोग होंगे वो आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे सकते हैं. So it has very large community. And after that, overview of Power BI desktop. कुछ इस तरीके से हमारा Power BI desktop दिखता है. Power BI desktop is a desktop application for building Power BI reports visualization के लिए. And wide range of data connector, powerful tool. Yeah, wide range of data connector मतलब इसका इस पॉइंट्स का क्या मतलब है? अगर आपके पास डेटा किसी भी सर्वर पे है, लेट्स सपोज कि आपकी कंपनी यूज़ करती है SQL सर्वर, Oracle सर्वर, AWS और गूगल के कोई भी हो, तो आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ से डेटा डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे लाना पड़ेगा. नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आप यूजर ID पासवर्ड के थ्रू एंड यू कैन स्टार्ट द विजुअलाइजेशन. सो दिस line says this, and user can create data models, write DAX queries. जैसे कि आप Excel में फॉर्मूला लिख सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, वैसे आप इसके अंदर भी सेम थिंग कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट, पावर BI सर्विसेज का ओवरव्यू बोलूँ. पावर BI डेस्कटॉप एंड पावर BI सर्विसेज इज डिफरेंट थिंग, नॉट एवरीथिंग, बट कुछ पार्ट जो होते हैं कुछ पार्ट सिमिलर हैं और कुछ पार्ट जो हैं थोड़े से अलग हैं. पावर BI सर्विसेज आपको क्या देता है कि अगर आपने लेट्स सपोज की कोई रिपोर्ट तैयार करी है तो यू कैन शेयर विद योर टीम मेंबर्स एंड यू कैन collaborate. बट पावर BI डेस्कटॉप में आप ये काम नहीं कर सकते. आप अपने पास विजुलाइज करके रख सकते हैं, आप फाइल बनाकर भेज सकते हैं, बट आप ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं भेज सकते. जैसे कि अगर गूगल शीट, और बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ तो गूगल शीट और एक्सेल में क्या डिफरेंस है. गूगल शीट में आप अपने लिंक को शेयर करके उसमें कोलैबोरेशन कर सकते हैं अपने टीम मेंबर के साथ, बट पावर BI डेस्कटॉप पे आप ऐसा नहीं कर सकते. So this is the big difference of Power BI desktop and between Power BI desktop and Power BI services. और बाकी सारी चीज़ें, Power BI services ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
or user can publish report, schedule data references and manage access permission. Yeah, of course. Let's suppose कि you are the boss of your company and let's suppose कि आप चाहते हैं कि HR डिपार्टमेंट हमारा कुछ डेटा देख सके और मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ डेटा देख सके, उसका कुछ रिपोर्ट देख सके, तो यू कैन मैनिपुलेट विद द परमिशंस ऑल्सो इफ़ यू आर एडमिन. सो कौन सा डेटा कौन सी टीम देखे, कौन सा डेटा कौन सी टीम देखे. एंड आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन ऑफ पावर BI डेस्कटॉप. मैं आपको छोटा क्विक एक पावर BI इंस्टॉलेशन दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप यू कैन इंस्टॉल द पावर BI डेस्कटॉप. Yeah, first we have to go on Google and Power BI desktop download. We have to write Power BI desktop download. And first link will come and we will click on it. After that we can click on the button download, and Power BI desktop setup exe and desktop setup 64, we can download any of them. So first I am downloading this download. It will take some time according to your internet speed. Yeah, if downloading is complete, then you can simply click double tap and you can install it. I accept, इसका license agreement accept कर लेंगे हम लोग. Next, next, install. It will take time according to your RAM speed. As you can see, this is started and within few seconds it will install. It will be installed. As you can see, the installation is completed. Now we will see a short demo how can use Power BI desktop. Next, if you search Power BI, yeah, here is it. Here it is. Because ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, so it will take time. Now, अगर पावर BI के अंदर मुझे कोई अगर डेटा लाना है तो मैं कैसे ला सकता हूँ? With the help of this function get data, you can see many options are available in that. Excel workbook, Power BI semantic model, data flows, SQL server, analytics, web. जैसा कि मैंने AWS वगैरह के बारे में बताया था आपको, SQL सर्वर के बारे में बताया. सो अभी मेरा लोकली मेरे पास फाइल अवेलेबल है विद द फॉर्मेट ऑफ CSV. सो आफ्टर दैट वी क्लिक टेक्स्ट और CSV. दिस इज द फाइल. वी कैन डायरेक्टली अपलोड द फाइल ऑन इट. दिस इज द डेटा. एंड इफ अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं इस डेटा के अंदर, लेट सपोज कि देयर आर मिसिंग वैल्यू, नल वैल्यूज, तो यू कैन क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा. अदरवाइज जैसे कि मैंने डाउनलोड किया है और मैंने इसको पहले से क्लीन कर के रखा हुआ डेटा को, तो मैं डायरेक्टली लोड कर सकता हूँ. सो आई विल लोड द डेटा एंड आफ्टर लोडिंग द डेटा विल बी शोन हियर, डेटा टैब. Yeah, it is the loading data. As you can see, the data is here, and if you click on drop down, there are many columns in that data. Pause करिएगा. डेटा गड़बड़ हो गया क्योंकि इसके कॉलम के नेम नहीं है, वो चेक कर लेता हूँ मैं. हर एक एलिमेंट को एक्सप्लेन कर दीजिए. अच्छा, हर एक एलिमेंट को एक्सप्लेन करो. हर एक एलिमेंट को एक्सप्लेन कर, डेटा पे चेक करिए आया करिए. हाँ, डेटा में चेक करिए. अच्छा, स्टॉप भी मैं कर देता हूँ इसी पे. ट्रांसफॉर्म, हाँ, ये लास्ट वाले में बहुत करना.
जैसा कि आपने देखा कि मैंने डेटा लोड तो किया, बट यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 10, कॉलम 11 करके लिख के आ रहा है, मेरे कॉलम के नाम लिख के नहीं आ रहे हैं। तो इट विल बी फिक्स आफ्टर इफ वी क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा, देयर इज ऑप्शन यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इफ यू क्लिक ऑन इट तो हमारी पहले वाले रो को ये हेडर बना देगा। अब एट्रिशन, बिजनेस ट्रैवल, CF एज बैंड, दिस आर द माई कॉलम नेम। पहले क्या था कि उसने डिफॉल्ट उठाया और कॉलम नेम को नहीं उठाया। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म डेटा एंड यूज फर्स्ट रो एज हेडर वी कैन डू इट, एंड आफ्टर दैट क्लोज एंड अप्लाई। इफ अगर आपके पास सारे चेंजेस हो चुके हैं, अगर आपका डेटा क्लीन है, देन आफ्टर दैट क्लोज एंड अप्लाई। नाउ यू कैन सी my column name is here, my column name are here. So if we want to like create a visualization, a sort of visualization, like अगर मुझे चाहिए कि मैं देखना चाहता हूँ एट्रिशन मतलब कि हमारी कंपनी से कितने लोग निकाले गए, अगर मैं ये चाहता हूँ, और अब मैं डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहता हूँ, ये आई नो कि दिस इज़ न्यू फॉर यू, बट मैं एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे इसमें विजुलाइजेशन करना कितना आसान है। अगर आपने डेटा एनालिटिक्स पांडास के थ्रू पढ़ी हो या विजुलाइजेशन सीबॉन या मैटप्लॉटलिब के थ्रू किया हो अगर आपने, तो उस पर कितनी कोडिंग करनी पड़ती है, बट इन दैट सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से काम कर सकते हो आप। सो अगर मैं एक पाई चार्ट बनाऊँ तो इसके अंदर बहुत सारे स्टैक चार्ट, बार चार्ट एंड स्टैक्ड एरिया चार्ट है, पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, बहुत सारे चार्ट है। अगर मैं एक सिंपल पाई चार्ट बनाऊँ तो कितना आसान है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। एक पाई पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड आफ्टर दैट मैं चाहता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट वाइज में एट्रिशन निकालूँ या डिपार्टमेंट वाइज में एम्प्लॉय काउंट निकालूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कॉलम को लेकर आऊँगा, वो मैं डालूँगा किसके अंदर, लीजेंड के अंदर। लीजेंड के अंदर ड्रैग करूँगा, ड्रैग करने के बाद मैं एम्प्लॉय अकाउंट को लेकर आऊँगा, वैल्यूज़ के अंदर ड्रैग कर दूँगा, एंड यू कैन सी द वेरी विद इन फ्यू सेकेंड आपका ये पाई चार्ट बनकर तैयार होगा। अगर आपने मैटप्लॉटलिब वगैरह में काम करा होगा तो आपने कितनी कोडिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ये पाई चार्ट बनकर तैयार होता है। सो पावर BI इसी वजह से काफ़ी ब्रॉडली यूज़ हो रहा है कंपनियों में भी, क्योंकि ये टाइम सेविंग है एंड टाइम को बहुत बचाता है। एंड इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई सिंपल, अगर पाई चार्ट नहीं आपको अच्छा लग रहा है, आपको बार चार्ट बनाना है, अच्छा इन द सेंस पाई चार्ट का एक अलग महत्व है, वो मैं कभी दूसरी क्लासेस में बताऊंगा। तो अगर आपको पाई चार्ट नहीं बनाना, आपको बार चार्ट बनाना, सिंपली आप इस डेटा पे तो क्लिक है ही, आप यहाँ पर सिंपल एक बार चार्ट पे क्लिक कर दीजिए कि मेरा ये बार चार्ट है, और मैं यहाँ पे सिंपल बार चार्ट बनकर तैयार हो गया। सिंपल, इतना ही आसान है, बार चार्ट बनकर तैयार हो गया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बिल्कुल, और आप अपने हिसाब से अपने फिगर के साइज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे, जैसे अब एक आपने यहाँ पे बना दिया, लेट सपोज यहाँ बना दिया, आप इसके बगल में कुछ और बनाना चाहते हो, आप इसके बगल में आप डोनट चार्ट बनाना चाहते हो, तो डोनट चार्ट पे क्लिक करेंगे, एक हमारा डोनट चार्ट के बगल में ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। उसके अंदर कुछ अगर वैल्यू डालना था तो उस तरीके से वैल्यू डाल के आपको मैं अगर दिखाऊँ कि डैशबोर्ड पावर BI पे कितने अट्रैक्टिव बनते हैं, तो मैं आपको गूगल पे लेकर चलूँगा और मैं आपको यहाँ पर सिर्फ दिखाऊँ कि पावर BI dashboard examples, and we will go on image. As you can see, these are the some dashboards how attractive is. अगर आप ये सीबॉन या मैटप्लॉटलिब से मदद से बनाना आप चाहोगे तो आपको you have to do a lot of coding. So in that आपने जैसा मैंने बताया कि एक पाई चार्ट बनाना या एक कुछ भी ग्राफ प्लॉट करना very easy in that. दिस इज़ ऑल अबाउट पावर BI। सो अगर आपको कोई क्वेरी भी होती है पावर BI के बारे में या इसके बारे में, अगर आप सीरीज़ को कंटिन्यू करवाना चाहते हो या कोई क्वेरी है आपको, तो आप यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू।